Yes friends, in the chapter 2, that is accounting process, we are studying the unit 4, that is a subsidiary books. There are some 8 subsidiary books which is the alternative for the journal journal entries, and that is divided into 8 parts. Number 1 purchase book, number 2 sales book, number 3 purchase return book, number 4 सेल्स रिटर्न बुक, नंबर 5 कैश बुक. इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, and the most important and that is the last one is the journal proper. Many time what I observed that students are not clear about this part, and that is the journal proper. Journal proper is the part of the subsidiary book which records all the entries which cannot be accommodated in the other 7 subsidiary books, starting from purchase sales book, purchase return sales return book, cash book, bills receivable and bills payable book. So all the entries which are not become a part of the other subsidiary book are entered through the journal proper. सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं. जर्नल प्रॉपर इज यूज टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द स्पेसिफिक सब्सिडियरी बुक. जो हमने स्पेसिफिक सब्सिडियरी बुक आगे पढ़ी उसमें कहीं पे भी जो नहीं आ सकता उसके लिए जर्नल प्रॉपर बनाई गई है. जर्नल प्रॉपर इज अ रेसिडुअल सब्सिडियरी बुक टू रिकॉर्ड द रेसिडुअल ट्रांजेक्शन. जो भी इसके अलावा के ट्रांजेक्शन है वो सब जर्नल प्रॉपर में एंटर होते हैं. The format of journal is exactly similar to the format of normal journal book, that is the what we normally pass the journal entry. In the same way the entries in the journal book you need to pass. Transaction recorded in journal proper, more particularly the following transactions are recorded. सबसे पहला ओपनिंग एंट्रीज, जितनी भी ओपनिंग एंट्रीज होती है दे आर एंटर थ्रू द जर्नल प्रॉपर. कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ओपनिंग एंट्रीज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस ही आता है. नो फ्रेंड्स, जब आप नया अकाउंटिंग ईयर शुरू करो, नई बैलेंस शीट शुरू करो, यू विल फाइल द जर्नल एंट्रीज, that is opening entries. So every time when you start with the new accounting year you have to pass the opening entries. So here normally while moving from one accounting year to another, the old accounts books are closed and the fresh set of books are opened for the new accounting year, जैसे मैंने अभी आपको समझाया. Hence it becomes necessary to carry forward all the assets and liabilities of the business which exist or on the last day of the previous accounting year period from the past accounts books to the current account books. Past account books से current account books में भी लाने के लिए you have to pass the opening entry. Thus the opening balances of the assets and liability are brought forward from the previous accounting period by passing the opening entries. हर साल ये opening entries you have to pass and that is a part of the journal proper. क्या एंट्री होती है? तो ऑल असेट्स आर डेबिटेड, so all the time when the business has to start the new accounting year they have to start with the opening entries. Entries like this: assets account debit to liabilities account, सभी assets को डेबिट किया जाएगा, सभी liabilities को क्रेडिट किया जाएगा, and the difference will be posted to the capital account. So here you can see that the difference of asset minus liability is stands for a capital account. Closing entries, yes, जितने भी नॉमिनल एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट्स है, वो सबको क्लोज करना पड़ेगा. दैट वे दैट में बी क्लोज इन द ट्रेडिंग अकाउंट, सम अकाउंट्स में बी क्लोज इन द P&L अकाउंट. एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, and to determine such profit all the nominal accounts balance must be transferred to the above account. Such entries are called the closing entries. हर एक nominal accounts के balance को आपको close करना पड़ेगा and that is called the closing entries. जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस और लॉसेस अकाउंट, हर एक एक्सपेंस और लॉसेस को आपको ट्रेडिंग P&L में शिफ्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एंट्रीज. आगे देखिए, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस are to be closed by transfer to trading account or P&L account, or expenses will have to be debit balance in the respective account. It is debit balance account and is to be closed, then it has to be credited as per the column common sense of rules. Hence the other aspect that is trading account और P&L account to be credited. इसके सामने trading और P&L account आपको credit करने पड़ेंगे.
अगर एक्सपेंसेस जो डेबिटेड उसको क्रेडिट कर दोगे तो ट्रेडिंग एंड P&L डेबिट हो गए, और जो इनकम्स है वो क्रेडिट को डेबिट करके आपको ट्रेडिंग एंड P&L को क्रेडिट करना पड़ेगा। फॉर ट्रांसफरिंग इनकम्स, जैसे अभी मैंने बताया इनकम्स को आपको ट्रांसफ़र करना है तो इनकम्स अकाउंट और गेन्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हर एक इनकम को आपको रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग और P&L में शो करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लोजिंग द इनकम और गेन्स अकाउंट। रीजन्स, ऑल द इनकम्स गेन्स अकाउंट टू बी क्लोज बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। इनकम अकाउंट विल बी credited credit balance in the respective account, and it is credit balance account is to be closed, then it is to be debited as per the common sense rule. Hence other aspect of trading account and P&L account has to be debited। मतलब ये सभी क्रेडिट इनकम और गेन के अकाउंट को डेबिट करके आपको रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग और P&L में इसको शिफ्ट करना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री, जिसका आपका पूरा यूनिट है, दैट इज इन द सेम चैप्टर 2, you will find the entire unit, that is unit number 6 on the basis of rectification of errors। आपने जितनी भी गलत एंट्रीज की है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसमें एरर ऑफ ओमिशन भी आ सकती है, कुछ कंपनसेटिंग एरर भी आ सकती है, एरर ऑफ कमीशन भी आ सकती है, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे आपने मशीन की परचेस को गलती से परचेस में डेबिट कर दिया, देन यू हैव टू रेक्टिफाई द सेम, एंड दैट इज डन थ्रू द रेक्टिफिकेशन एंट्री विच इज द पार्ट ऑफ द जर्नल प्रॉपर। Entries passed to rectify the errors occurred during the accounting process. Transfer will be made through a journal entry. For example, when goods purchased worth rupees 50,000 are used for a construction of a building, then transfer entry has to be made for transferring 50,000 from purchase account to building account. अगर ये बिल्डिंग के जगह आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, देन यू हैव टू ट्रांसफर द सेम फ्रॉम द बिल्डिंग अकाउंट इंस्टेड ऑफ द परचेज अकाउंट। एडजस्टिंग एंट्री, यस, सभी एडजस्टमेंट के लिए जो एंट्रीज है दैट इज कॉल्ड अ एडजस्टिंग एंट्री। हर ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट मिलते हैं, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज रेफर टू दोज एंट्रीज पास्ड to adjust the income expense for the current, ensure that only current year's income and expense are matched. Hence entries passed for the following purpose are called the adjusting entries. For journal entries refer chapter number 2a, that is journal. Prepaid expense, outstanding expense, accrued incomes, income received in advance, depreciation, interest on capital, interest on drawings, ये वो सब बातें हैं जो आपके ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन में नहीं शो हुई है, बट एज इट्स अ पार्ट ऑफ द योर ट्रू एंड फेयर accounting, it should be noted down, and that is entered through the adjustment, and that entry is also passed in the journal proper. Provision for bad debts and bad debts provision, for discount on debtors provision, for discount on creditors, ये सबके एंट्री is also passed through the journal proper. इसके अलावा क्या क्या मिसलेनियस एंट्रीज आ सकती है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कैपिटल इन काइंड ऑफ मोटर कार गुड्स इनकॉर्पोरेट एज अ कैपिटल इनटू द बिजनेस, दिस इज ऑल्सो पास थ्रू द जर्नल प्रॉपर. क्रेडिट परचेज ऑफ असेट, पर क्यों सर क्रेडिट परचेज तो परचेज बुक में नहीं आता? नहीं फ्रेंड्स, वहाँ हमने पढ़ा कि दैट इंक्लूड ओनली परचेज रिलेटेड टू गुड्स, बट इफ़ यू परचेज द असेट ऑन क्रेडिट देन इट विल बी पास थ्रू जर्नल प्रॉपर. एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये वो बुक है जहाँ पे रेयर ट्रांजेक्शन होते हैं. नॉर्मली बिजनेसमैन डू नॉट परचेज द असेट ऑन क्रेडिट, बट इफ़ यू फाइंड सच टाइप ऑफ रेयर ट्रांजेक्शन देन इट विल बी पास थ्रू द जर्नल प्रॉपर. क्रेडिट डेबिट नोट्स टूवर्ड्स द अलाउंस, एडजस्टमेंट, डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये सब एंट्री आर पास थ्रू द जर्नल प्रॉपर. एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल्स रिसीवेबल, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है, कई बार स्टूडेंट्स आर कमिटिंग अ मिस्टेक कि सर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक में आता है. नो फ्रेंड्स, जब बिल इश्यू होता है तभी सिर्फ वो बिल्स रिसीवेबल बुक में आता है. जब वो डिसऑनर होता है इट विल पास थ्रू द जर्नल प्रॉपर. रिसीट और प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और देयर इश्यू इफ सेपरेट सब्सिडी बुक आर नॉट मेंटेन, अगर सब्सिडी बुक्स आपने मेंटेन नहीं की है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक की, तो यू हैव टू पास सच type of bills receivable and bills payable through the journal proper.
एंट्रीज फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड इफ डबल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्काउंट कॉलम। अगर आपके कैश बुक में 2 ही कॉलम है, दैट इज कैश एंड बैंक, तो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड की एंट्रीज भी यू हैव टू पास थ्रू द जर्नल प्रॉपर। गुड्स ओरिजिनली परचेज फॉर कैश नाउ रिटर्न टू सप्लायर, कैश इज नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली, सच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल पेपर एंड नॉट द परचेज रिटर्न बुक। अगर गुड्स आपने खरीदा था परचेज में, पर उसको रिटर्न करके आपको अभी कैश नहीं मिली, हाँ कैश मिलती तो इट विल बी एंटर थ्रू द कैश बुक, पर कैश ना मिली हो देन इट शुड बी पास थ्रू द जर्नल प्रॉपर, और इन सच अ केस यू हैव टू बी केयरफुल कि ये परचेज रिटर्न बुक में एंटर नहीं होगी। गुड्स ओरिजिनली सोल्ड फॉर कैश नाउ रिटर्न टू कस्टमर, जैसे हमने परचेज रिटर्न के केस में देखा, सेम वे इन द केस ऑफ सेल्स रिटर्न, कैश इज नॉट पेड इमीडिएटली, सच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर एंड नॉट इन द सेल्स रिटर्न बुक। वो सेल्स रिटर्न बुक का पार्ट नहीं होगा, पर सिर्फ और सिर्फ जर्नल प्रॉपर में होगा। बी केयरफुल, अगर ये गुड्स कैश में बेचे हैं तो ही, अगर क्रेडिट में बेचे हैं तो इट विल बी पार्ट ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक। ओके, सबसे बुक के क्या फ़ायदे हैं वो समझना सबसे अहम है। सबसे पहले इट विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, सिंस सेपरेट रजिस्टर और बुक्स इज कैप्ट फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ट्रांजेक्शन का बाइफर्केशन होता है एंड दैट बाइफर्केशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन सो परफेक्टली। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी अवेलेबल एट वन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखना है तो आप इजीली सीधा सेल्स बुक में जाके यू कैन मैनेज टू अंडरस्टैंड द सेम। सिर्फ आपको कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखना है तो यू कैन गो टू द कैश बुक एंड यू कैन वेरीफाई ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस। सेम वे परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का भी आप इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन मिलता है, तो इट विल बिकम हेल्पफुल टू नो द समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन। सेकेंड, डिवीजन ऑफ वर्क। यस, जर्नल बुक में क्या होता है फ्रेंड्स के इतने सारे एंट्रीज एक साथ रिकॉर्ड करना इज़ नॉट गुड, और इतने सारे बुक कीपर्स होते हैं। अब इतने सारे बुक कीपर को अगर काम बांटना हो तो यू हैव टू गो विद द सब्सिडियरी बुक, जहाँ पे जर्नल के पार्ट्स किए जाएंगे और ये पार्ट्स में आपको सभी वर्क का अलोकेशन भी इजी हो जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो सेपरेट द वर्क्स। डिवीजन ऑफ द वर्क, द अकाउंटिंग वर्क मे बी डिवाइडेड अमॉन्ग द नंबर ऑफ क्लर्क्स, सिंस देन देयर विल बी सेपरेट बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग द वेरियस ट्रांजेक्शंस। अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक्स है, तो यू कैन हैव अ नंबर ऑफ बुक कीपर्स विच कैन अकोमोडेट अ डिफरेंट बुक्स एंड दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जर्नल। स्पेशलाइजेशन, यस, डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन भी आता है। ये आपने अपने स्कूलिंग के दिनों में भी पढ़ा होगा कि एक का एक काम कोई करता रहेगा रिपीटेटिवली, तो ही विल बी expert in that work, so he will also get the benefit of specialization. When the same work is allotted to a particular person over a period of time, as I mentioned, he acquires full knowledge and it becomes efficient in handling, thus the accounting work will become so efficiently, तो आप अपना accounting work बहुत easily और efficiently कर पाओगे। जैसे ही एफिशिएंटली हो जाएगा यू बिकम एक्सपर्ट, इट विल रिजल्ट इनटू अ सेविंग ऑफ टाइम एंड दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियस बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ अ नंबर ऑफ बुक्स। एक साथ कितने सारे बुक्स में काम चलता होगा, तो एक साथ होने की वजह से यू कैन गेट इट रेडी सो परफेक्टली एंड सो स्पीडीली, सो इट विल ऑल्सो गिव द बेनिफिट ऑफ सेविंग ऑफ टाइम। दिस विल लीड टू द वर्क बीइंग कंप्लीटेड क्विकली, फटाफट हो सकता है। एक साथ 5 बुक कीपर बैठ जाए, कोई परचेस बुक लिख रहा है, कोई सेल्स बुक मेंटेन कर रहा है, कोई कैश बुक कर रहा है, सो यू कैन गेट ऑल द वर्क्स डन स्पीडीली। कंट्रोल, व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, आप फटाफट लोकेशन पकड़ पाओगे। द लोकेशन ऑफ द एरर इज फैसिलिटेटेड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक। सेपरेट बुक है, इससे आपको सीधा पता चल जाएगा। जैसे कि सेल्स बुक का टोटल गलत किया और इसके वजह से डेटर्स अकाउंट में कोई गलती नहीं होगी, पर सेल्स अकाउंट में कुछ गलती होगी, तो यू कैन इजीली चेक योर एरर्स परफेक्टली। फर्दर द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड द फ्रॉड्स विल बी चेक बाय द यूज ऑफ वेरियस सब्सिडी बुक। तो आप लोकेट कर पाओगे कि ये एरर्स कौन सी जगह पे हुई होगी एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एरर सो परफेक्टली। सो यहाँ पे फ्रेंड्स
we understand the subsidiary book which is the alternative of the journal proper, और journal proper के टुकड़े टुकड़े ही subsidiary book कहलाते हैं, और ये subsidiary book helps the large scale business with a many advantages starting from division of work, specialization, saving of time and efficient working, and as well as you can have a quick information with a summarized way, and that is the advantage of subsidiary book. Now we'll start with the classwork. Yes friends, now we'll start with the classwork of the unit 4 chapter 2, that is subsidiary book. The number 1, in purchase book the records is in respect of cash purchase. No, cash purchase is never recorded in the purchase book, it records only credit transaction, so this is wrong. Credit purchase of goods dealt in, yes, this is the right answer. That is purchase book only records credit purchase of goods only, so answer is option B. All purchase is also wrong because it is include cash and credit both. Second, the sales return book records the return of goods purchase. आगे हमें समझना पड़ेगा कि ये रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज इज नेवर एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक. रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेस्ड, once again the word purchase and anything is both objectionable. Return of goods sold, yes this is right, जो goods हमने बेचे वो रिटर्न आए, that will be entered in the sales return book, so answer is option C. The sales book is a part of the journal, yes, जैसे हमने आपको समझाया कि जर्नल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका एक टुकड़ा है, that is sales book. This is wrong, it's not a part of the ledger and it is not a part of the balance sheet also. The weekly or monthly total of the purchase book posted to the debit side of purchase account. The weekly or monthly total of the purchase book, yes, it is posted on the debit side of the purchase account is the right answer. बाकी के भी देख लेते. Posted to the debit sides of sales account, इसमें sales बीच में नहीं आता. Posted to the credit side of purchase account, this is wrong. Yes, posted to the debit side of purchase account is wrong. C is the right answer. Purchase account, C is the wrong answer. That purchase account will never have a credit balance, it is always have a debit balance. So our answer of option A is absolutely right. Next, the total of the sales book is posted. Same way, sales book का total, credit of the sales account, credit of the purchase account, credit of the capital account. Naturally, the sales book posted on the credit side of the sales account. We already studied the posting of the subsidiary book. Sales book का total sales account के credit side जाएगा by the words by sundry debtors, और individual debtors account में चला जाएगा, that is individual ledger में. So answer is option A. Next, in which book of original entry will you record the allowance of 50 was offered for an early payment of cash of 1050. अगर कैश का अर्ली पेमेंट के सामने अगर 50 रुपीज़ डिस्काउंट है, इट विल बी एंटर थ्रू द कैश बुक, और डिस्काउंट कॉलम वाला जो कैश बुक होता है दैट इज 3 कॉलम, सो द एंट्री विल बी पोस्टेड इनटू द कैश बुक. नेक्स्ट, अ सेकेंड हैंड मोटर कार वाज परचेज ऑन क्रेडिट. यस, दिस इज द कार. The car is a asset and which is purchased on credit. So any credit purchase or sale of asset will be recorded through journal proper. From B brothers of 10,000 will be recorded through journal proper. वो journal proper में record होगा क्योंकि ना तो वो goods है और ना वो cash में है. अगर goods होता credit में purchase किया हो तो वो purchase book में आता, पर ये asset है और asset भी record होती cash book में अगर वो cash में होता, पर ये credit में है. Next, in which book of origin entry will you record the bills receivable 1000 which was received from a debtor in full settlement for a claim of 1100 is this not. अभी हमने पढ़ा कि bills receivable जब हमें मिलता है then it will be recorded through bills receivable book, but when it is dishonored it is entered through the journal proper. So these are the MCQs. Which subsidiary books are normally used in the business, हमने देखा 1 से लेके 8 उसका पूरा explanation दिया गया है. You can write down from the same. What are the advantages? अभी हमने जस्ट पढ़े advantages like from 1 to 5. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिलती है, काम का बंटवारा हो जाता है, बंटवारा काम स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है, समय शक्ति और मनी का बचाव होता है, और यू कैन हैव अ कंट्रोल ऑन द डिफरेंट पार्ट्स. अब होमवर्क के सम को भी सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स. दिस इज द सेम सम फ्रॉम द मॉड्यूल. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ मेसर्स, दैट इज
Pranath and Engineers Limited, Delhi, January 2, sold to Messrs Ajanta Electricals. ये हमें करना है, that is in the books of Pranath Engineers. 5 pieces of ovens at 6,000 each, less trade discount at 10%. अब ये ovens जो हमने बेचे that is of rupees 6,000 each, 5 पीस, तो 30,000 हुआ, 10% डिस्काउंट काट ले तो विल गेट 27,000. तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे ये रिकॉर्ड होता है. तो ये रहा सेल्स बुक, उसमें आपको डेट और पार्टी का नाम लिखना है, अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट और नेट प्राइस. आप देख सकते हो 6,000 लेस 10% डिस्काउंट इंटू 5, तो 30,000, इसमें 3,000 हमने डिस्काउंट दिया, तो 27,000 विल बी शोन ऑन द नेट अमाउंट कॉलम. आगे देखते हैं सेकंड. सोल्ड मैसेज अजंता इलेक्ट्रिकल्स प्लाजा 10 पीसीस ऑफ टैबलेट्स 8,000 ईच, लेस दैट इज ट्रेड डिस्काउंट 5%. तो 8,000 का एक ऐसा 10 हमने बेचा है, तो 80,000 हुआ और उस पर 5% डिस्काउंट, तो टोटल 80,000 पे 5% कम्स टू 4,000. तो इसका एंट्री होगा इन दिस वे. सेकेंड, that is 8th of Jan, Electronic Plaza, that is 10 pieces, tablets of 8,000 each, 5% डिस्काउंट, तो 80,000, उसमें 5% जैसे हमने आपको बताया 4,000, तो बाहरी नेट अमाउंट में आ जाएगा 76,000. जैसे आपने यहाँ पे अजंता इलेक्ट्रिकल्स लिखा था वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा है विद द सेम. आगे देखते हैं. सोल्ड टू मेसर्स हरियाणा ट्रेडर्स 5 पीसीस ऑफ ज्यूसर्स ऑफ 3,500 each, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो 3,500 इंटू 5, that comes to 17,500. हरियाणा ट्रेडर्स 3,500 इंटू 5, 17,500, उस पर 10% डिस्काउंट, तो 15,750. तो ये आपका ग्रॉस अमाउंट, ये डिस्काउंट और ये नेट अमाउंट. आगे अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो उसमें क्लियरली लिखा है, पोस्ट इनटू द लेजर द एंट्रीज ऑफ सेल्स बुक प्रिपेयर्ड इन द अबव क्वेश्चन. इससे फ्रेंड्स आपको सेल्स बुक का भी कैसे पोस्टिंग होता है वो भी समझ में आ जाएगा. तो इफ़ आई गिव यू द आंसर फॉर द सेम, तो सबसे पहले आपको अजंता इलेक्ट्रिकल का लेजर ओपन करना है, उसके डेबिट साइड 2 सेल्स लिखना है. इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा का अकाउंट ओपन करना है, उसके डेबिट साइड 2 सेल्स लिखना है. और हरियाणा ट्रेडर्स के डेबिट साइड 2 सेल्स लिखना है. ये तीनों में यू हैव टू राइट द नेट ऑफ डिस्काउंट अमाउंट और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक. और कई जगह पे कई बुक्स में बाय सन्ड्री डेटर्स भी लिखते हैं. टोटल लिखना है, दैट इज 1,18,750. यस, दिस टोटल यू हैव टू टेकन फ्रॉम द सेल्स बुक. यस, दिस इज द टोटल. ये टोटल आपको वहाँ पे शिफ्ट करना है. तो आप देख सकते हो कि सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल आता है, बट डेटर्स में इंडिविजुअल आता है, दैट इज इंडिविजुअल लिखा जाता है इन द डेटर्स अकाउंट. सेम वे विद द परचेस बुक, सेम वे विद द परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. इन द सेम केस यू हैव टू मेक अ टोटल ऑफ द बुक एंड you have to post into the respective account, and individual items are shown in the debtors or creditors account. So friend, in this way you can understand the very important part of the accounting process, that is a subsidiary book. What I observed, students normally make a big mistake in this topic. The reason being they don't have any idea regarding the posting of the subsidiary book, and which is a key part. वो भी आपको समझना पड़ेगा कि सब्सिडी बुक का भी किस तरह से पोस्टिंग होता है. तो ये सब बातें आपने, आई एग्री कि स्कूलिंग लेवल पे पढ़ी होगी, बट इफ़ you are lacking somewhere, then this topic will help you to make your foundation that is strong, and that will help you to clear the first level so easily. So we wrap up the unit 4 chapter 2, that is the subsidiary book, in the chapter called accounting process for the foundation accounts paper.